Cold wave conditions continue across the country as dense fog engulfs large parts of North India, disrupting normal life. Heavy fog and cold winds swept across Punjab's Moga district, sharply reducing visibility and slowing traffic as biting cold gripped the region. In Amritsar, devotees braved the harsh winter to offer prayers at Sri Harmandir Sahib, with temperatures hovering around 11.8 degrees Celsius. Many devotees appreciated arrangements such as carpets and hot water, which helped visitors stay warm and focus on their prayers. सभी लोग अपनी इच्छाओं के तहत कुछ मांगने के लिए आते हैं और सभी की इच्छाओं वहाँ पे गुरु रामदास जी पूरी करते हैं। सभी लोग चल कर आते हैं। ठंड का कोई मतलब नहीं, ठंड से नहीं हमें लोग देखे, कोई ठंड नहीं लग रही वहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे एचजीपीसी की तरफ से भी जो इंतजाम किए गए हैं अंदर मैट वगैरह के, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, वो भी जितनी अच्छे एंगल तो सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हैंडलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये एक आस्था है हर एक बंदे में, चाहे जितने भी परेशानी हो, कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो, जितने भी, चाहे गर्मी में भी ऐसे ही आते हैं, तो ये आस्था है हर बंदे की, तो जो अपने गुरु के पास आते हैं और अपना नतमस्तक होते हैं। यहाँ पे इतनी ठंड के बावजूद भी सारी संगत का इतना ध्यान रखा जा रहा है कि अगर हम हाथ भी धोते हैं तो वहाँ पे भी हमें गर्म पानी का एहसास हो रहा है, और चल रहे हैं तो मैट है बिल्कुल क्लीन अच्छे वाले, जिसपे कोई ठंडक का महसूस ही नहीं होता यहाँ पे आगे ठंडक। In Dehradun, Uttarakhand, although fog slightly eased, the cold intensified, making daily life difficult for commuters, workers and school-going children. Residents huddling around fires to stay warm said a rising number of vehicles and recent tree felling have worsened the city's air quality, adding to the challenges posed by the cold. With fears of a further drop in air quality and intensifying cold, many are urging the authorities to take prompt precautionary measures. जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि दिल्ली का आईक्यू लेवल 500 क्रॉस है और यहाँ पे भी 250 होता जा रहा है, तो भारत मतलब सरकार को ये देखना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे पॉल्यूशन की गाड़ियाँ चल रही हैं और लोग भट्टियाँ जला रहे हैं, धुआं हो रहा है, उससे कोहरे पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है और बच्चों के जैसे स्कूल के आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो सरकार को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, दिल्ली बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं और टूरिस्ट की जैसे गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कल जॉब के लिए निकले तो बहुत ज़्यादा धुंध और कोहरा था, आज मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। दिल्ली जैसा विभाग हो गया है, यहाँ पे पेड़ पौधे देहरादून के अंदर काट दिए गए हैं, प्रदूषण और कोहरा यहाँ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस कारण पे यहाँ पे अब समस्याएं बढ़ी जा रही हैं। In the west, minimum temperatures dropped across Rajasthan, with Nagaur recording the lowest at 3.7 degrees Celsius. Dholpur witnessed cold wave conditions as dense fog slowed traffic, forcing vehicles to move with extreme caution and keeping many residents indoors. As the cold continues to disrupt routines, people are keeping warm by lighting bonfires, sipping hot tea and wrapping themselves in woolen shawls while going about their day. धौलपुर में फिलहाल कोहरा बहुत तेज है और गलन भी बहुत ज़्यादा है आज। धौलपुर में वैसे देखा जाए तो तापमान भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है। Cold wave conditions persist across Madhya Pradesh, with plunging temperatures, freezing dew and forming frost on grass and vehicles. In Dindori, bone-chilling cold and dense morning fog over the past week have reduced visibility, disrupting normal life. The cold wave also gripped Menpat village in Chhattisgarh Sarguja district, where temperatures dropped to a minimum of 1 degree Celsius, with freezing dew blanketing vegetation. Towards the east, severe cold has disrupted daily life in Bihar's Jahanabad, with residents struggling to step out for their livelihood. Dense fog and poor visibility have also affected train services. Many residents have appealed to the district administration to arrange bonfires and distribute blankets across the district.
मौसम तो 2-3 दिनों से बहुत ही करवट बदल चुकी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत ही कनकनी पछुआ हवा जो चल रही है जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। जब काम है मजबूरी में आदमी गर्म कपड़ा पहनकर बाहर निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो सभी से सावधानी बरत कर ही चलना चाहिए, काहे कि एक बैग ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। जिला प्रशासन से भी आह्वान करेंगे कि सब जगह अलाव की व्यवस्था की जाए। बच्चे और बूढ़े लोगों का एकदम घर से निकलना बहुत मुश्किल है। आवश्यक कार्य से ही लोग बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा अलाव जला करके जहां तहां अपने घर में डूबके हुए हैं। हम यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि कम से कम बुजुर्गों के लिए कंबल की व्यवस्था किया जाए, हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि ठंड से कुछ निजात मिल सके। अलाव की व्यवस्था नहीं है जिला परिषद? नहीं, न नगर परिषद के तरफ से है, न जिला परिषद के तरफ से है। कहीं भी अलाव की व्यवस्था जहानाबाद में नहीं है किसी भी मोड़ पर। Meanwhile, in Kaimur, all government and private schools up to class 10 will remain closed until December 24th as the cold intensifies. Persistent early morning fog has also disrupted movement of trucks, with drivers slowing down amid poor visibility, delaying deliveries and affecting business. Local business owners have raised concerns over the lack of administrative measures to protect commuters and travelers. स्थिति ऐसी बनी है कि लोग लग रहा है कि मर जाएंगे। यहाँ 2-3 ठो यहाँ राहगीर हैं कि कैसे कैसे उनको हाथ वो भट्टी पर होटल में सेक कर उनको खड़ा कर भेजा गया। इतना स्थिति बुरा है ठंडा से, प्रशासन की ओर से कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा रोड में पड़ रही है, कुहरे से बहुत टेंशन हम लोगों को हो रहा है। रात में हम लोग चल नहीं पा रहे हैं और अभी भी बहुत दिक्कत है। अब धूप होगा तब निकलेंगे? धूप होंगे भैया, 11-12 बजे के पहले धूप नहीं खुलता, इसलिए नहीं चल पाते। तो फिर ऐसे तो आपका व्यवसाय भी प्रभावित है, बहुत परेशानी है हम लोगों को। The IMD has issued 7 cold wave and cold day warnings, forecasting persistent cold conditions in parts of Bihar and Madhya Pradesh, while temperatures in Rajasthan are expected to drop by 2 to 3 degrees Celsius from December 24th. District administrations are rolling out additional measures and issuing advisories to protect residents from the severe cold.